Hello everyone. We at Honor of Women feel extremely delighted to come before you with our second edition of annual talk show on the topic Gender Equality, Rights and Reality. We at Honor of Women feel extremely pleasure in providing the platform to young women so that they can express their views as well as they can inspire others. Gender equality. It means different thing for different people and it extends to different arenas of life, including social, cultural, educational, financial. And so does the speakers of today's talk show. They also belong to different spheres of life. For example, we have with us Meghna Mehra. She is an author, social activist. She is the founder of All India Queer Association. So let's know from her about her organization and what work she does. Hi Meghna. Hi. So welcome to our show. We would like to know that what work you do through your organization and so please. So All India Queer Association is a Marxist union and it works for the rights of LGBTQIA plus community in India, and we focus on employment, awareness and education of women and LGBTQIA plus community, and we are spread across 12 states in India and expanding. So recently during the lockdown we did this project. It is called Empower the Queer project, and we all noticed that during the COVID-19 pandemic women and queer people were oppressed. They were facing discrimination. A lot of homophobic violence was going on. Trans people were suffering a lot, and especially the Hijra community and those who engage in sex work. So we started providing financial assistance by doing a crowdfunding, and later we turned it into a project and started helping people to seek mental health professionals and therapy because the discrimination was very traumatic. And we also helped a lot of queer individuals to find jobs because there is discrimination at workplaces for queer community. And so we are currently compiling a list of queer friendly employers, doctors and lawyers to help the community. And we are also having our branch in Lakshminagar. So in case somebody needs any help, they can reach out to us. Thank you so much, Meghna. Welcome to our show. And I will also add that she is an author of 2 books, one of which is Marriage of Convenience. And she has also published, her research paper was also published on the topic Impact of COVID-19 Lockdown on Women of Metropolitan Cities. So next because nowadays we are talking about financial equality, and finance plays very important role when it comes to equal status in society. So let's go to Manisha. She is a bachelorate in economics from Miranda House University of Delhi. She has also been a part of Women Development Cell, and now she is a first generation entrepreneur from her family. So let's know from her about her business and about her new venture. Okay, hi. So I'm Manisha Alda, as she has already introduced me. So yeah, I did my graduation from Miranda House, where actually I understood the meaning of feminism or gender inequality. Actually वहीं पे मेरे को सारी चीज़ें पता चली थी, because earlier, to be very honest, I never experienced it first hand. राइट कभी फैमिली में लड़कियों को पीछे नहीं करा गया. वी आर 2 sisters एंड कभी उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मैंने फर्स्ट हैंड देखा नहीं. बट व्हेन आई केम टू द कॉलेज आई अंडरस्टूड हाउ मेनी डिफ़िकल्टीज पीपल फेस, और इन जनरल लड़कियों को कितनी दिक्कत होती है, राइट. So that is the reason why I joined Women Development Cell, and after studying, because there are many aspects of feminism as well, like बहुत सारे radical feminists भी हैं, right, but सारी चीज़ें go through करने के बाद finally I understood कि कितना ज़्यादा financially free होना important है लड़कियों के लिए. बिकॉज आई वॉज जस्ट व्हेन आई वॉज कमिंग, तो मैं एक वीडियो देख रही थी पेटीएम के थ्रू. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. सो उसमें एक्चुअली जब स्टार्टिंग में दे हैड टू, अगर कोई भी चीज़ का आंसर येस है तो दे हैड टू कम फॉरवर्ड.
और अदरवाइज दे हैव टू मूव बैकवर्ड. ठीक है, तो जैसे ही फाइनेंशियल क्वेश्चंस आने लगे तो विमेन वर स्टेपिंग बैक बिकॉज दे वो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, SIPs हो, डिफरेंस हो फाइनेंशियल एजुकेशन में, वो नहीं आया था. और एंड समहाउ व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस आई हैड नो नॉलेज अबाउट इट. बट आफ्टर डूइंग द बिजनेस actually I have a lot of people who are supporting me and women in general. और मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन उस फेज में नहीं देखा. लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में one of the best thing is कि until and unless your blood is red you are always invited to do business of your own. So yeah, that is why I am pretty I feel not financially free, but yeah, I feel very empowered now. And I now know that I can empower other women as well, because if I can do it, then others can too. Yeah, that's very nice, Manisha. And so next we have with us Ishita. She is a law student studying in Faculty of Law, and so I would like to know from her that this idea of gender equality, since we all are talking about gender equality, rights and reality, so from where did you get this idea, or you are inspired by it, okay, I have to work towards gender equality, I have to fight for gender equality? जेंडर इक्वालिटी आई थिंक लोग कहते हैं बट एक्चुअल में लोग मानते नहीं हैं. एंड इवन इफ मैरिजेस में भी वी सी कि जो भी लॉज हैं हमारे वो मोस्टली फेवरेबल टू मेन हैं, ठीक है, एंड नॉट टू वुमेन. एंड नाउ लाइक वुमेन आर अर्निंग मोर, सो आई थिंक लॉज नीड टू बी चेंज, क्योंकि उसके अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन के ऊपर डाली जाती है. एंड व्हेन इट कम्स टू एक सोसाइटी में एज अ कॉर्डियल पीसफुल सोसाइटी बनाने के लिए, साथ रहने के लिए, देयर शुड बी इक्वालिटी. ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा अपर हैंड दे दिया जाएगा और दूसरे को नीचे करने की कोशिश की जाएगी, दैट्स क्योंकि पीछे से लोग यही सोचते हुए आ रहे हैं, तो वो प्रेशर और वो मेंटालिटी वो लोग अपने घर में भी फिर वो करते हैं. सो आई थिंक एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए दोनों पार्ट को इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है, और लॉज़ को बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन करने की दोबारा से ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पुराने हैं, वैसे ही चल रहे हैं, एंड विद टाइम उनका मिसयूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा. तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत लॉ में इसका ध्यान देना चाहिए, उनकी चेंज है. Okay. So the same question goes to मेघना, कि मेघना आपके अंदर ये कि जेंडर इक्वालिटी, मतलब ऑब्वियसली जब हम छोटे थे तो तब ये आइडिया नहीं होता कि अच्छा, तब तो लगता है कि हाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा है दुनिया में, लेकिन व्हेन वी जस्ट कम टू कॉलेज या फिर घर से बाहर, तब पता लगता है अच्छा लड़कियों में जो डिफरेंस किया जा रहा है दैट इज़ नॉट गुड एंड दैट इज़ नॉट द आइडियल वे ऑफ लिविंग. सो वो आपके दिमाग में या फिर आपको कैसे ये चीज़ आई कि आपको नहीं, इस चीज़ के लिए आपको, अगर आप एसेक्सुअल हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने आप का स्टैंड कैसे ले पाए? बिकॉज देयर आर मेनी पीपल जो स्टैंड नहीं ले पाते हैं. उनको ये लगता है कि अच्छा ठीक है, लोगों से बच के रहना है, या फिर कुछ भी झूठा पोर्ट्रे कर देना है कि लोगों को जवाब देने के लिए. तो आपने इस चीज़ को कैसे डील किया? आई थिंक नॉट ओनली अबाउट एसेक्सुअल बट ऑल्सो बीइंग फेमिनिस्ट. अगर आपको ये बोले फेमिनिस्ट है, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप कुछ गलत काम कर रहे हो, तो उस चीज़ से कैसे आपने डील किया? So I think for that I am inspired by my mother, because if we go back to early 2000s, मैं देखती थी कि जो मैरिड लेडीज़ है वो जीन्स नहीं पहनती थी, except my mother, and she used to drive around. My mother was really independent as a woman. My dad wasn't very helpful, so she used to drop us to school, jeans पहनना, चीज़ें करना, and that made me realize कि even heavy lifting, जैसे अगर हम जेंडर रोल्स की बात करें तो घर का सामान हम लोग उठाने के लिए सोचते हैं कि भाई और पापा कर दें, एंड बट मेरी मदर कर देती थी. एंड माई डैड इज़ बिट पेट्रियार्कल. ही मैंने जेंडर इनइक्वालिटी रियलाइज़ की बचपन में, बिकॉज वी आर 2 sisters, एंड ऑफन मेरी मदर को लोग बहुत सिंपैथेटिक वे में बोल देते थे कि ओ माय गॉड 2 ही लड़कियां हैं, अच्छा भाई नहीं है, एंड पीपल यूज टू आस्क मी भाई नहीं है तुम्हारा. एंड लेटर वर्ड्स लाइक टिल टीनेज आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दे बिहेव एज इफ लड़का पैदा करना इज़ अ कंपल्शन. सो आई डिड थिंकिंग व्हाई, एंड 1-2 बारी लाइक माई फादर सेड के वंश ख़त्म हो गया, लड़का नहीं रहा. एंड देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग लाइक मेरे फादर की 5 बहनें हैं, उसके बाद मेरे फादर हुए हैं, एंड आई गॉट टू नो कि लड़के के चक्कर में इतनी सारी लड़कियां कर दी. तो मतलब माई डैड इज़ फ्रॉम बनारस, तो
हम लोग जब वहाँ भी जाते थे, जैसे मैं लास्ट गई हूँ 2010 में, उसके बाद मैं नहीं गई, तो फूफा वगैरह और बोल रहे हैं कि यू शुड ड्रेस अ सर्टेन वे, यू शुड वियर kurta with jeans instead of top, don't wear sleeveless, don't be too loud. So my mother is Punjabi and I don't know, it's genetic, we are loud. So I don't know, one time I was told by my fufa to change clothes, and that is when I started rebelling for the first time ke nahi, main nahi change kar rahi, and I'll go in that top only. And it wasn't like a very problematic thing, and my dad knew since beginning कि मैं पलट के बोल देती हूँ. तो my fufa just went after my dad के ये कैसे बात कर रही है, पापा ने कह दिया मुंह से, and my reaction, oh my god. So that is when supported you in that thing. Yeah, and my mother is very fierce. She has dealt with a lot of her fair share of problems, and तो मेरे को इतना समझ आया कि अगर दुनिया में रहना है तो अपना स्टैंड लेना ही है. एंड मैं एक्टिविज़म में थी मतलब फर्स्ट ईयर से. आई वॉज अ पार्ट ऑफ ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट. तो उस टाइम पे फेलोशिप ख़त्म हो रही थी, हायर एजुकेशन का फ़ंड कट हो रहा था, एंड तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूजीसी ऑफिस के बाहर जो है डेरा डाल लिया था, मोस्टली डीयू और जेएनयू के स्टूडेंट्स ने, और जामिया के थे, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के थे. जितना लोग बढ़ते गए आते गए, तो तब स्मृति ईरानी भी हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी. हमने देखा एक बार तो हम लोग मार्च टू MHRD किया हमने, एंड सॉरी शी वाज MHRD मिनिस्टर, आई एम सो सॉरी. सो हम लोग को रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मेरे को रिसर्च करनी थी बिगनिंग से, आई वांट टू बिकम अ थ्योरिस्ट, कि सबसे ज़्यादा वुमेन ही बैक डाउन होंगी अगर PhD का फंड कट होता है, सीट कट होता है. क्योंकि when you reach a certain age after 25, people indirectly around you start asking you to get married and have kids. And in my and another thing is that they also want कि अच्छा इस प्रोफेशन में जाए जो थोड़ा सेफ रहे. yeah, like school teaching. हाँ, स्कूल टीचिंग की टीचर कर लेंगे, आके चले जाएंगे, घर भी संभाल लेंगे, दोनों को बैलेंस कर लेंगे. They have this mentality कि school teaching is easy, but it isn't. क्योंकि कॉपी चेकिंग और बहुत सारी चीज़ें होती है. यू आर हैंडलिंग सो मैनी किड्स, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. अगर देखा जाए तो उनकी वॉइस की भी प्रॉब्लम रहती है. सो एक्टिविज़म करके भी उस टाइम पे भी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये बैकफायर कर जाएगा अगर फंड कट होगा एजुकेशन में. एंड हाँ, एक तो हम लोग जब वुमेन कॉलेज में थे और बाहर जाते थे, जैसे ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस और वो सब में, तो थोड़ा सेक्सिज्म रहता था. बहुत सारे लोग पूछते थे वुमेन कॉलेजेस क्यों हैं. और मैं SPM कॉलेज से हूँ, वहाँ पे मोस्टली वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास घर की लड़कियाँ आती हैं. तो जब मैं एडमिशन असिस्टेंस करती थी, मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं कि मतलब एक भाई था, वो बिहार के पूरे गांव से लड़के अपनी दोनों छोटी ट्विन सिस्टर्स की जो है पढ़ाई कराने आया था. और एक लड़की थी, उसका शिवाजी कॉलेज एडमिशन हो रहा था, बट उसके फादर नहीं कराया था जस्ट बिकॉज वो कोएड है. उन्होंने बोला अगर इसका यहाँ होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ब्याह दूँगी. और वो सिर्फ 12th पास है लड़की. तो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उसका एडमिशन कराना, क्योंकि हमने अंकल को ये भी बोला कि अच्छा आप थोड़ा वेट कर लो, अगली लिस्ट में आ जाओ, नहीं तो अदिति महाविद्यालय है, वो हरियाणा पास रहते हैं. तो आई स्टार्टेड नोटिसिंग के आसपास चीज़ें हैं एंड अक्रॉस क्लासेज है. मैं बहुत प्रिविलेज फैमिली से आती हूँ, तो मेरे साथ में भी कम है. मैंने कास्टिज़म भी देखा, मतलब मेरी एक क्लासमेट थी, उसके साथ कास्टिज़म होता था. वो टॉपर. कमिंग टू दैट थिंग कि आपने हाउ डिड यू डील विद जैसे व्हेन यू केम टू नो दैट asexual as you are so first I asexual got leader. to know about when I No, was you in got to third know, year. and then how did you deal with it? Like how did you take a stand for yourself and became the first asexual So I student leader? never took stand for it till my third year when I was contesting for the presidential post, and that is when certain ideology people started spreading this propaganda that asexual who, so I don't have a vagina, which is not accurate knowledge, but it was very disgusting, and there was widespread bullying. Then some teachers also used to mentally harass me. कहीं मिल गए, कुछ बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया. एक बार तो ऐसा हुआ, मैं एक क्लास में कैंपेन करने गई हूँ, एंड वी weren't even talking about queer people then, but this one teacher said इन लोगों को नहीं होना चाहिए, ये लोग HIV फैलाते हैं. And there was a problem about it, and हम लोग, so that is when one day I just saw a junior crying because of all this, because I don't know, I wasn't very much affected by it. I was just internalizing it कि ठीक है, we'll get through this, we'll do the fact checking, and ये चीज़ होती है, आप ये नहीं बोल सकते. When I saw her crying, I realized okay, I need to now stand up, and I started addressing each and every class.
लाइक एक दिन में मैं क्लास में 26-30 क्लासों में जाके स्पीच दे रही हूँ, क्लैरिफाई कर रही हूँ, कोई चीज़ कोई पूछ रहा है एंड मैंने पूछा भाई कि देयर वर टाइम्स के ये लोग आके कुछ भी बहस कर रहे थे, दूसरे आइडियोलॉजी के लोग, बट मैंने उनसे पूछा भाई कि क्या मेरे सर पे तुम्हें सिंग दिख रहे हैं एंड मतलब समटाइम्स आई बिहेव लाइक दैट, आई आस्क्ड देम, उनका नहीं, मैंने जो नॉर्मल बच्चे थे क्लास जो किसी एफिलिएशन के नहीं थे उनसे पूछा क्या तुम्हें कुछ स्पेशल लग रहा है मेरे से बात करके, अरे नहीं अच्छा लग रहा है बात करके। मैं कहा तो फिर तुम्हें क्या लगता है क्वेयर लो में कुछ दिक्कत है? कहते नहीं हम तो आपके साथ उठते बैठते आ रहे, आपने हमारा एडमिशन कराया तो that So was it's really basically nice. that you know these And I are lost by stereotypes. 4 votes, just Oh my 4 God. votes. So Oh my God. So this is- कौन है ये 4 लोग? I don't know. उधर दे दिए और to another party. So I realized after that, even by helping the queer community, that अपना stand हम लोगों को खुद ही But लेना I think पड़ता है. this is commendable that even after doing so much thing, you know, you lost only by 4 votes. That is the commendable thing, because otherwise people will think that nobody much will vote for second her. So that now you must have got some confidence. Okay, now people are voting for me. At least I only lost the election, but you did not lose that hope. You know that you can go out and talk about yourself and take a stand And for I others was as the well. NSS president of my college and everything was fine at that time. After the elections, मतलब 2 जगह के president की जगह एक जगह president को. So I realized one thing after that whole hate campaign के अपना stand लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, because my mother told me, I was in the closet, I just said के मम्मा वो बोल रहे हैं, वो लोग वैसे भी मुझे कम्युनिस्ट होने पे बहुत चीज़ें बोल देते थे, इंक फेंक देते थे, गालियाँ दे देते थे, एंड आई वुड जस्ट यू नो काउंटर आर्ग्यू, एंड उनको नॉलेज नहीं होती थी मोस्टली थियोरेटिकल, तो वो भाग जाते थे एंटी नेशनल बोल के. मैं उनसे कई बार पूछ भी लेती थी आप वहाँ पे थे क्या जब नारे लग रहे थे? जैसे नो, एक टाइम तो कोई फर्स्ट ईयर की लड़की आके मेरे को कहती है एंटी नेशनल थी. मैंने कहा हुआ था ये सारा चीज़, एंड आई आस्क्ड देम, एंड उसका रिएक्शन एंड में था दीदी सॉरी मैं नहीं करूँगा. मैंने कहा फैक्ट तो चेक करके आओ, बहस करने फैक्ट तो चेक करके आओ. सो आई रियलाइज के व्हेन माई मदर सेड के सी दीज थिंग्स विल हैपन, यू हैव टू टेक योर स्टैंड अगर पॉलिटिक्स करना है तो, अदरवाइज मत करो. एंड आई रिमेंबर वन मोर थिंग, मैं बचपन में मतलब बच्चे खेलते हैं तो मेरे को एक बार किसी ने पीट दिया था, मैं पिट के आ गई थी, एंड मेरी मदर ने मेरे को तब, आई थिंक दैट इज़ व्हेन दिस होल थिंग के खुद का स्टैंड लेना है, यू नो, हैज़ बीन फेड इन साइड मी. मम्मी कह देती थी पिट के नहीं आना है, पीट के आओ. Same thing happened with me. एंड बच्चे आके ना मेरी मदर के पास बाद में पेरेंट्स को लेके कंप्लेंट करते थे, मेघना की मदर ने बोला है कि पिट के नहीं आना है तो वो हमें पीट. So as Meghna as Meghna told her story, so it's not कि आप कॉलेज में चल जाओगे तो स्टीरियोटाइप्स खत्म हो जाएंगे या आप पोस्ट ग्रेजुएशन में चल जाओगे. दीज आर एवरीवेयर. आपके घर पे भी है, आपको घर पे भी रिलेटिव से भी मिलेंगे सुनने में. बाहर निकलोगे आप, मार्केट जा रहे हो वहाँ पे भी, कॉलेज जा रहे हो वहाँ पे. सो इट्स जस्ट यू नो योर सेल्फ कॉन्फिडेंट, या जो आपका कॉन्फिडेंट होगा ना वो वहाँ पे जाके मैटर करता है कि आप कितना स्टैंड लेते हो, अपने ऊपर के लिए खड़े हो पाते हो. सो मूविंग टू मनीषा, आई वुड लाइक टू नो कि मतलब मनीषा, बिकॉज यू आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर, वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, सॉरी. सो लाइक how many what challenges did you face, and you know how did you cope up with those challenges? Or because you are a women, as you said that there is no discrimination in your family, but at least in the society or wherever your community, your peer groups, so what were the views? Discrimination नहीं था, but yes, my father thinks he is a bit patriarchal. So he thought कि लड़कियों को इतना फाइनेंसेस नहीं समझ आता है. बेसिकली उनको यही समझ आता है कि जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब ले लो, सिक्योरिटी है, ठीक है. तो पापा का ये था कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आई रियली वॉन्ट टू डू माई ओन बिजनेस एंड आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ जॉब, राइट. बिकॉज दे, अब उनकी भी गलती नहीं है समहाउ, बिकॉज अगर मैं बात करूँ बचपन से लेके अभी तक, ही हैज़ ट्राइड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. Whenever I made him understand something, he understood it. So definitely for starting a business you require some money, right? So for that I didn't even talk to my father because I knew he wouldn't be understanding it. But after a point of time when I actually was achieving some kind of success, then I told him, and then the best thing was he accepted it.
नाउ ऑल्सो ही सेज कि नहीं बेटा गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लो, क्योंकि सोसाइटी में क्या बताएंगे कि बिजनेस कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, पापा को नहीं पता है क्योंकि. बट somehow he understood it and I'm glad that he did and he supports me. अभी भी हर महीने पूछते रहते हैं कि कितना बना, कैसा बना, but yeah, he understood it and he really supports me, but he wants me to do अभी भी वो पीछे लगे रहते हैं कि बेटा अभी तक इकोनॉमिक्स करा, अब पता नहीं कहाँ कर रही हो, RBI में जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो. I tried मैंने उनके शांति के लिए like I had to give exams for it even if I didn't want to. So that is the basic problem which I felt. And वो वाली बात होती है ना कि जब एक लड़की इतना कॉन्फिडेंट होती है या फिर फाइनेंशियली फ्री होने की बातें करती है, तो खास करके सोसाइटी में लोग आपको काफ़ी उस तरीके से देखते हैं कि अरे इसको तो पैसा चाहिए, ठीक है, ये कैसे इतनी ज़्यादा ऊपर की बातें कैसे सोच सकती है, वाई डज शी वॉन्ट टू डू इट. But it should be normalized that it's okay. Women can be ambitious too. Yeah. So that is the thing I experience and actually मेरे को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जितना मैं अचीव करती जाऊँगी उतना I will have the power and उतना I can influence other people. So yeah, that is why I'm working very hard to achieve the success. Yeah. So ज़्यादा problem नहीं होती to be very honest. बट या थोड़ी बहुत होती है तो नेग्लेक्ट कर देती हूँ. सो एंड हाउ इज इट लाइक व्हेन यू डू मीटिंग्स, ठीक है, तो उसमें क्योंकि लड़की हो या उसकी वजह से कुछ जैसे तुमने बोला कि एंटरप्रेन्योर में इतना फर्क नहीं पड़ता, इफ यू हैव रेड ब्लड यू आर वेलकम इन दैट कम्युनिटी. बट स्टिल आई एम आस्किंग लाइक डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ यू नो कि मतलब स्टार्टिंग में मीटिंग सेटअप करने में या फिर अप्रोच करने में लोगों को? एग्जैक्ट, आई विल टेल यू. सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक व्हेन आई हैड मीटिंग्स विद पीपल फ्रॉम दुबई. सो दे मिसजज फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक विमेन हूँ, ठीक है, और दूसरी बात कि मैं छोटी हूँ. तो दे वर लाइक कि इतना छोटा में दे यूज टू जज मी कि इतना कैसे, इसको मेरे से ज़्यादा कैसे पता है. लाइक देयर वर पीपल जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद भी उनके साथ मीटिंग हो रही थी, तो दे यूज टू जज मी इनिशियली एंड दे डिडंट want to listen to me. But after like when I answer everything or like I'm able to communicate with them, then they understand. So yeah, you have to prove you have to prove that you are capable and then people will respect you. Yeah, so because there is also this mentality that they feel threatened also कि मतलब मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा या फिर मेरे ज़्यादा, और फिर वो अगर एक्चुअली वो तो नॉर्मल कॉम्पिटिटिवनेस होती है, लेकिन उसमें एक विमेन हो जाए ना तो उसका वो एक एड फैक्टर हो जाता है. सो यंग, हाउ कैन शी डू इट. और उसके बाद जब, क्योंकि अभी दुनिया में जो भी हो रहा है कि अभी आप इतनी यंग बिलियनर बन रही है, अभी जो ब्लूमबर्ग की फाउंडर थी, सो वो सब जब हो रहा है तो ऐसा लगता है कि हाँ, नाउ विमेन कैन डू, सो दे आर यू नो कमिंग फॉरवर्ड. सो yes, coming to Ishita, so because Ishita is studying law, so we are just like this thing that was this thing also in your family कि मतलब जेंडर इक्वालिटी का या फिर पीयर ग्रुप में, अगर मान लो आप ऑनर, जैसे शी इज़ एसोसिएटेड विद आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑनर ऑफ वुमेन, सो जैसे आप करते हो तो क्या आपको बैकलैश मिलते हैं अपनी फ्रेंड्स लोगों से या पीयर ग्रुप से कि अच्छा ये तो उसमें काम करती है? क्योंकि देयर आर मेनी पीपल आई हैव सीन इन फैकल्टी एंड यू नो इन अदर कॉलेजेस ऑल्सो, जिनको ऐसा लगता है कि अच्छा अगर ये उस वाले में मतलब विमेन इशूज़ पे काम कर रही है तो उससे दूर रहो, या फिर वो ना उसको एक तरीके से ऑस्ट्रेसाइज कर देता है कि ये तो एक अलग कम्युनिटी है जो विमेन इशूज़ पे काम कर रही है, एंड वी आर कूल पीपल, दे आर बोरिंग पीपल. See, like I come from a Sikh family, ठीक है, and Sikh culture में कभी भी बॉय और गर्ल में फ़र्क नहीं होता है, ठीक है. That's nice. Yeah. एंड सबको इक्वली ही देखा जाता है. हमारे तो नाम भी सेम होते हैं. ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि सबके नाम ही सेम होते हैं, क्योंकि वो मेंटालिटी उसी से ही पता लग जाती है कि हम फ़र्क नहीं करते हैं. एंड हमें बहुत इनफैक्ट अगर फैमिलीज़ में भी कज़न्स वगैरह में सब पैसे कंबाइन करके भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अगर इफ सम चाइल्ड रियली वांट्स टू डू समथिंग. तो हाँ, लेकिन पीयर में ये मुझे ज़रूर ऐसा फील हुआ कई बार कि बाकी फैमिलीज़ में, बाकी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है. तो हाँ, उसका बैकलैश कभी कभी हमको मिलता है, क्योंकि हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल का फ़र्क पड़ जाता है जो दिखता है एक सिख फैमिली और बाकी जगह नहीं. एंड तो और थोड़ा उस वजह से थोड़ा सा आइडियाज़ क्लैश होते हैं, एंड लोगों को लगता है कि हाँ
कॉलेज में भी अगर मैं हाउ के लिए आती हूँ तो पीपल से कि इंटर्नशिप करना इज़ मच बेटर दैन कमिंग इन हाउ, बट इट्स लाइक मोर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एंड मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारी नॉलेज इन्हांस होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड बहुत सी नई चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि आप इंटर्नशिप करें तो कहीं भी जा सकते हैं, आप लॉ कंप्लीट करोगे आप उसके बाद भी वहीं जाओगे, एट द एंड ऑफ द डे आपने वहीं जाना है। तो लेकिन हाँ ये चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जब आप वहाँ जाओगे वो यही सबसे पहले यही पूछते हैं। हाँ तो हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बैलेंस करके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसलिए भी ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन चला ही आ रहा है ना कि हम लॉ करते हैं, लॉयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसके बाद मतलब ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने पाथ पे चल रहा है। लेकिन बात तो यहाँ आती है ना, आप कंटेम्पलेट कब कर रहे हो कि आपकी कोई सिचुएशन है, अगर आपको कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है या फिर आपको अगर कहीं पे लग रहा है कि इसके साथ बुरा होता है, तो आर यू इवन कंटेम्पलेटिंग अबाउट इट कि आप अपने लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो, मुझे बस 100% मार्क्स लाने हैं, मुझे बस इसके बाद ये जॉब करनी है, बस उसके बाद आपने कहाँ सोचा दूसरे इंसान के बारे में। सो यू नो, so as today is 8th of March, which is celebrated as International Women's Day, now we would move forward with the theme of that UN has put this year, that is women in leadership achieving an equal future in COVID-19 world. So I would like to ask our speaker Manisha, what does she think about this theme and what is the condition, what has been the condition of the women in the COVID, and as well as what does she think about this theme that the UN has put? Okay, so women actually in COVID-19, as people were staying inside, a lot of things are not outside. Like a lot of things women have been facing. I read a lot of news that actually sexual abuse बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पूरे COVID-19 के situation में. So mentally भी women are not in their mental state भी उनका इतना अच्छा नहीं है कि वो कुछ फ्यूचर के बारे में सोच पाए, राइट। सो पहली बात तो सेक्सुअल अब्यूज़ जो है उसको कम करने के लिए यू हैव टू मेक मेन अंडरस्टैंड, बिकॉज हमेशा लड़कियों पे डालने से अच्छा है। आई अंडरस्टैंड देयर आर सम डिफरेंसेस, ठीक है, फिजिकली तो डिफरेंसेस हैं, बट आपको जो बाकी बायोलॉजिकली जैसे डिफरेंसेस हैं तो बाकी चीज़ों में आपको वो दैट डजंट गिव यू द पावर टू एक्चुअली अब्यूज़ और यू नो एक्सप्लॉइट विमेन, ठीक है। तो जब तक, क्योंकि मेंटल स्टेट जो आई थिंक पर्सनली, क्योंकि मेरा जो मेंटल स्टेट आई वाज एट अ फेज जब मेरा थोड़ा दिमाग सही नहीं चल रहा था, सो आई नो कि उस टाइम कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, राइट। अनटिल एंड अनलेस मेंटल स्टेट सही नहीं होगा तब तक विमेन आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। इन जनरल कोई ह्यूमन बीइंग ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, राइट। सो वी हैव टू मेक श्योर, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड अनटिल एंड अनलेस वी अचीव दैट तो आगे का कोई सोच भी पाएगा। इट स्टार्ट्स एज आई ऑलवेज से कि पर्सनली और अपने से ही चीज़ें ठीक होती हैं। तो आई थिंक कि पीपल हैव टू स्टार्ट एनालाइजिंग देमसेल्व्स, एंड women should also, you know, take a stand for themselves, because one of my friends, she told me that she was physically abused by one of her chacha, I guess, and nobody took a stand for her, and that is why उसका रिलेशन कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सही नहीं है, ठीक है। बट वो वाली बात ना सिर्फ ऐसे ही चुप, मतलब किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। एंड नाउ ऑल्सो शी ऑलवेज यू नो सर्च फॉर पीपल जो कि उसके लिए स्टैंड ले, तो वो खुद के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाती है। एंड दैट इज़ वॉट आई टोल्ड हर, अंटिल एंड अनलेस यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नोबडी एल्स विल। You will have to take a closure, because until and unless you have that closure in your mind, you won't be able to move forward. So yeah, I think that is the most important thing, and then we can move forward for a better and as brighter said by future. a feminist that personal is political. Yeah. So here it comes like a personal जो आपका issue होता है, that somewhere impacts your social life, your way of thinking. So it impacts all that, you know, how you behave with other person, कि आप अपने घर पे कैसे behave कर रहे हो अपने आसपास के लोगों से, वैसे ही आप बाहर भी जाके करोगे। Exactly. So moving to Meghna, that this is a theme like women in leadership. So impact of COVID-19, you know, you have written a paper on impact of COVID-19 on the women of metropolitan cities, and same is the theme that, you know, achieving an equal future in COVID-19 world.
So how do you reconcile both the things, or how do you see that this is a theme and you have also worked on it? So what are your views? So during COVID-19, both rural and urban women have faced worse of gender inequality. Even we all as students have seen the digital divide. A lot of our colleagues from rural spaces do not have access to laptops, and they are still struggling to give assignments or exams. That is like one point. Then there was spike in domestic violence, and that is covered in my research paper. So I did research on metropolitan women in India and states like Delhi, Mumbai, जिनको हम लोग कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं. तो यहाँ पर जब पैंडमिक आया तो जो इम्पैक्ट रहा, एक तो द डबल शिफ्ट फेनोमेना. So those women who are working outside, see, all women are working women. Yeah. Some of them are doing paid labor, some of them are doing unpaid labor, which is like my mother, who is a housewife, because there's a lot of labor to do. So डबल शिफ्ट फेनोमेना भी आया, काम बहुत बढ़ गया. उसके बाद दोज वुमेन हु आर वर्किंग आउटसाइड, उन्हें वर्क फ्रॉम होम भी करना था, बट फैमिलीज वर नॉट टेकिंग दैट थिंग इनटू कंसिडरेशन एंड आस्किंग देम टू डू ऑल द डोमेस्टिक चोर्स एट द सेम टाइम. उससे बहुत वायलेंस बढ़ा. फिर जब बीच में अल्कोहल का एक्सेस मिल गया था, तो मैंने देखा कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स थे या जो इवन अपर स्टेटा ऑफ सोसाइटी में अल्कोहलिक्स थे, अल्कोहल का एक एक्सक्यूज़ आदमियों को मिल गया था मार्केट करने के लिए घर पे. सो दैट वाजंट वेरी गुड. एंड उसके अलावा जो लेड ऑफ हुए, क्योंकि वुमेन आर मोर लाइकली टू गेट लेड ऑफ व्हेन a company is shutting down, or a company is on a budget, and they think that they can only have X numbers of employees and they need to, let's say 100 employees हैं and उनको 20 हटाने हैं, तो there is a possibility कि वो 15 women हटाएंगे. And they choose men over women. Yeah, and there is already a very low labor force participation in India. जब हम बात करते हैं even upper class areas में भी women are more likely to leave jobs after getting married. तो जब pandemic आया तब it was very difficult, and even now people are trying to cope up. So because world economy is affected very badly, not only just Indian economy. So अभी भी हायरिंग में दिक्कत होती है, वुमेन को जल्दी नहीं रखा जाता. पीपल हैव दिस मेंटालिटी कि आदमी ही घर चला रहे हैं, एंड दे डोंट कंसिडर जैसे सिंगल मदर्स और इवन औरतें भी घर चला सकती है जो मैरिड हैं, कि उनको देने की जगह जॉब्स दे प्रेफर मैन at same levels. There are many studies about it. Then there is wage gap. So when a pandemic happened, एक तो उन पे केयर वर्क का प्रेशर आया कि they had to make sure कि उनके घर में कोई इन्फेक्ट ना हो. वैसे ही मेल न्यूट्रिशन का इंडिया में प्रॉब्लम रहता है. आप लोगों ने स्टडीज़ पढ़ी है कि मोस्टली इंडियन वुमेन जो है 1 in 10 इंडियन वुमेन आर एनेमिक. सो और ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, नेग्लिजेंस होना शुरू हुआ. उसके बाद मैरिटल रेप इज़ स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया. उसका वायलेंस बढ़ गया, जिसको हम लोग वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस में मतलब थ्योरेटिकली कवर करते हैं, लीगली इंडिया में नहीं कवर होता. तो ये सारी एक प्रॉब्लम्स आई थी. उसके बाद होमोफोबिक वायलेंस हो रहा था, तो उसमें देखा गया कि लेस्बियन और बायसेक्सुअल और एसेक्सुअल वुमेन पे करेक्टिव रेप्स बढ़ गए थे, कि फैमिली मेम्बर्स रेप कर रहे थे टू फिक्स देम और टू मेक देम हेट्रोसेक्सुअल. फिर ट्रांस वुमेन जो है बहुत ज़्यादा अटैक हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही थी. लास्ट ईयर अ ट्रांस वुमेन इन यमुना विहार हैज़ बीन शॉट डेड, एंड उसके बाद उस पर इंक्वायरी भी नहीं हुआ है, बस ख़त्म हो गया केस. 1 दिन 2 दिन में उन्होंने दे हैव क्लोज द केस. तो उस टाइम पे अभी हमें लगता है कि लीडरशिप रोल्स में वुमेन को और आना चाहिए, एंड द मोर वुमेन विल कम आउट, एंड आई थिंक उसके लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है. वुमेन आर नॉट स्पीकिंग अप. आवर डिवोर्स रेट इज़ स्टिल वेरी लो. इट्स लाइक अराउंड 1 to 3%. आई हैव रिटन एन आर्टिकल ऑन इट एज वेल, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो डिवोर्स प्रोसीजर इज़ वेरी लॉन्ग, एंड फिर देयर इज़ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद इट. देन शादी के बाद बहुत सारा उनका करियर गैप आ जाता है, तो उनको डिवोर्स वुमेन को जल्दी जॉब भी नहीं मिलता है. और ऐसा बोला जाता है कि एलिमनी से हो जाएगा, बट एलिमनी से नहीं होता. और हर वक्त हर चीज़ के लिए एलिमनी नहीं मिलती. सबसे पहला चीज़ होता है कि करेक्टर, जब भी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स होती है सबसे पहला चीज़ आदमी ट्राई करते हैं, बिकॉज अभी तो होमोसेक्सुअल मैरिज हो नहीं रही है लीगलाइज. तो हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेज में के कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो, एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी. सो एंड दे डोंट इवन कंसिडर द लेबर दैट इज़ डन बाय देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज, बिकॉज इफ़ वी कैलकुलेट के
वी अगर वही सारे काम के लिए वी हायर अ डोमेस्टिक मेड, और इवन इफ वी बाय अ डिश वॉशर विच इज़ अराउंड 45,000 to 50,000, तो डिश वॉशर द मशीन, तो आपका खर्चा हो रहा है. बट व्हेन पीपल स्टिल सी वुमेन एज फ्री लेबर, स्पेशली वाइफ्स, बहुत सारे घर में होता है कि अरे बहू रोटी नहीं अच्छी बनाती है, एंड दे स्टिल हैव दिस मेंटालिटी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेल एजुकेटेड पीपल, जो आपके मेरे जैसे हम सबके जैसे होते हैं. तो दैट इज़ व्हेन आई नोटिस्ड व्हाइल डूइंग माई रिसर्च पेपर इज़ कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था अगर वो वर्किंग वुमेन है जो पेड लेबर करती हैं तो वो उसके साथ में ये अनपेड लेबर भी करे. वैसे डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं आ पा रहे थे, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था क्लास बेसिस पे कि ये लोग अनहाइजीनिक रहते हैं. और जबकि देखा जाए तो कोविड-19 इंडिया में स्प्रेड हुआ बाय द अपर स्ट्रेटा जो बाहर ट्रैवल करता है, और प्रिकॉशंस नहीं लेने की वजह से फिर वो लोअर स्ट्रेटा में. हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे थे लोगों से कि घर पे रहें, स्पेशली द प्रिविलेज वंस जो घर पे रह सकते हैं, क्योंकि फिर अगर उनकी वजह से सम पुअर पर्सन गेट, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दोज पीपल कांट अफोर्ड ट्रीटमेंट ऑल द टाइम, एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. तो आई थिंक ऑल वुमेन, वेदर इट्स अपर क्लास और लोअर क्लास वुमेन, दे बोर द ब्रंट ऑफ इट. डोमेस्टिक वर्कर्स की जॉब जाने की वजह से प्रॉब्लम हुई. फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स वुमेन थी, एंड क्योंकि मैंने गांव का करने का रिसर्च ट्राई किया था, बट मैं नहीं जा पा रही थी फिज़िकली वहाँ, और यहाँ तो ऑनलाइन मैं रिसर्च इजीली कर पा रही थी. तो हमें पता चला आंगनवाड़ी वर्कर्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड एंड दे आर अंडर पेड ऑलरेडी. तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी कि अवेयर करना है कोविड-19 के बारे में, बट उनको अवेयरनेस के साथ साथ उनके साथ प्रिकॉशंस नहीं रखी गई. ना उनको फ्रीक्वेंट टेस्ट कराए गए, ना उनको तब वैक्सीन नहीं आई थी, बट वैक्सीनेशन या कुछ करना चाहिए था जिससे उनकी तबीयत ख़राब ना हो. वो खुद तबीयत ख़राब हुई उनकी. देयर वर टाइम्स के पीपल वर अबैंडनिंग डेड बॉडीज़ ऑफ रिलेटिव्स, एंड दीज वर्कर्स वर एक्सपेक्टेड के वो क्रिमेशन कर दें या फ्यूनरल कर दें. So I think the point that we can take from here is कि like the theme that COVID-19 का जो impact रहा है, that is long lasting. yes, that is long lasting, क्योंकि आप 10 years to जॉब गई है, यहाँ पे विमेन की जॉब गई है. दूसरी जगह पे आप अगर उन्हें ये हुआ है कि भाई चलो वहाँ पे ऑफिस में जाके उन्हें फिजिकली या मेंटली, हो सकता है कुछ लोग जो जिन्हें टॉर्चर होता है या फिर सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना, वो नहीं हुआ, तो उन्हें साइबर क्राइम की वजह से दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन आ गए, तो कोई भी कुछ भी कर रहा है, कहाँ से थ्रेट आ रही है, पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट टाइम, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई मेन फोकस इज कोविड. तो जो इसका इम्पैक्ट रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ लोग कोविड बुलिंग भी हुआ था. जब कैरी मिनाटी ने वीडियो डाला था तो हम लोगों को ढूंढ के लोग गालियाँ दे रहे थे ऑनलाइन. मतलब आई हैव ट्रिगर वार्निंग, पिक्चर्स ऑफ प्राइवेट पार्ट्स ऑफ पीपल सेंड टू मी अनसॉलिसिटेड, बिकॉज कैरी मिनाटी के पेज पे हमने जाके उसको क्रिटिक किया था. दे फाउंड अस एंड दे वर गिविंग अस रेप थ्रेट्स, एंड आई हैड टू फाइल एन FIR एंड लाइक इट वाज वेरी स्केरी. एक तो लोग आई थिंक खाली हो रखे थे कोविड-19 में, तो सब एंड दे आर सो इनसेंसिटिव कि उन्हें लगता नहीं है कि जिन चीज़ों के लिए वो कर रहे हैं, दे थिंक क्या रहे भाई हम तो बहुत तारीफ का काम कर रहे हैं, कि अगर किसी इंसान ने क्वेश्चन, एक तो किसी इंसान को आप क्वेश्चन कर दो तो दैट पर्सन टेक इट सो सो पर्सनली कि अरे भाई कैसे मजाक उड़ा दिया, मेरे को तो बस इसको जाके किसी ना किसी तरीके से, एंड दे थिंक कि आप अगर किसी को सेक्सुअली हरास कर रहे हो ना, कि दैट इज द बेस्ट वे दैट वी कैन डू, कि चलो प्राइवेट पार्ट की फोटो भेज दो, बेस्ट वे. तो थ्रेट तो पहले ही आ जाता है. हाँ, थ्रेट, और ये सेक्सुअली थ्रेट, दैट इज शेमिंग और ये सारी चीजें. सो इसीलिए दे से दैट विमेन लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको, आप अपने लिए बोलोगे तब जितनी ज़्यादा विमेन बोलेंगी तो दूसरों को भी वो देख के कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ठीक है वो बोल रही है तो आई कैन ऑल्सो स्पीक. ठीक, अभी तक क्या होता है कि जब बोलती ही नहीं है तो हाउ कैन यू गिव कॉन्फिडेंस टू अनदर पर्सन कि तुम भी बोलो और पीपल विल लिसन, पीपल विल क्रिटिसाइज यू. दैट इज फॉर श्योर कि आधे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट, और मे बी यू विल गिव कॉन्फिडेंस टू अनदर पर्सन टू स्पीक. आज हमारे साथ स्पीकर्स जो है, मनीषा है, मेघना है, इशिता है, तो मे बी इनको ऑब्वियसली इन लोगों ने फेस किया है स्ट्रगल, या फिर नहीं भी किया तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी में किया है, अगर अपनी फैमिली में नहीं किया तो कहीं ना कहीं तो किया है. तो अगर इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है अब कि चलो नाउ दे नो हाउ टू डील विद द थिंग्स, बट एटलीस्ट वो किसी और को इंस्पायर कर सकते हैं. सो यू नीड टू स्पीक अप, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी. सो टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ में तुम अपना व्यू दे दो, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग? आई थिंक
like she said the mental satisfaction is the main thing, क्योंकि issues बहुत सारे आते जाएंगे. Mental satisfaction is very much important and उसके लिए family support होना is very important. लोगों को inclusively रहना सीखना चाहिए and अगर हमारा गोल सेट होना चाहिए एंड अगर उसमें कई बार ब्रेक आता है या हम खुद को पॉज देना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, तो प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि जल्दी सब कुछ हो जाए एक दूसरे को देखा देखी. तो अगर आप अपना टाइम लेना चाहते हो, गैप लेना चाहते हो, पॉज लेना चाहते हो, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो, मतलब बीट इन करियर, बीट इन योर होम, अगर आपको आज एक चीज़ नहीं करनी तो इसमें कुछ गलत नहीं है. तो आई थिंक वो चीज़ भी लोगों को समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है. या सो आई थिंक हाँ बहुत अच्छा इशिता ने बोला. तो अब हम डू यू हैव एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स, बट कीप इट वेरी शॉर्ट, ओनली फॉर 1 minute. Okay, great. Manisha, So- concluding remarks and just focusing on gender equality and the women empowerment and the way forward. Yeah. So I think women have to even after, because let's face it, problems तो कहीं ना कहीं लड़कों को भी फेस करनी पड़ती है, ठीक है. सो उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए. यू शुड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट, क्योंकि अगर आप नहीं निकलोगे तो देयर इज़ नो वे एनीबडी कैन पुल यू अप, ठीक है. एंड इफ़ यू आर अप, you cannot push anybody down, you can only pull someone else up. So just make sure that you pull yourself up, and then you can definitely pull other people or empower other people or influence or in general help other people. So yeah, that would be my concluding statement. Thank you so much, Manisha. Ishita? My concluding statement would be like people को inclusively रहना is the most important thing, क्योंकि at the end we live in a society and we need to acknowledge that. ठीक है, हर कोई अगर अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करेगा तो इक्वालिटी कभी नहीं आएगी. बैलेंस. या इक्वालिटी कभी नहीं आएगी एंड इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एंड दोनों को इक्वली सोचना चाहिए. I think my concluding statement is education is a tool to combat inequality, be it queer people, be it women, and it is very necessary for us to have access to education. We should have access to education. We should educate ourselves and become economically independent, because it somewhere comes back to the class issue and economics. कि जब भी कुछ ऑर्डर आपको निकाला जाता है सोसाइटी से तो आप इकोनॉमिकली वीक हो जाते हो और फिर आप मैनेज नहीं कर पाते हो. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एम्पावरमेंट कि हम लोग एजुकेशन और ये सब इंस्टीट्यूशन में आएँ, तभी हम ये स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सकते हैं. Okay, so I think now we are going to wind up this session. We had really empowering discussion with 3 of these young minds. And also the take up from this discussion could be that you need to pull yourself up, you need to educate yourself, and you need to balance your interest, your as well as other person's interest. So now if you people also have any views regarding this topic, that is gender equality, rights and reality, so you can also send us a short video, or you can text us your views about on this topic. And we would love to hear you. We would love to share your views on social media. So till then, keep inspiring and keep fighting for an equal future.